Good morning everyone, this is Jyoti, pupil teacher of science from Dr. Ganesh Das TV College of Education for Women, Karnal. Today we will study about the life in the forest. Living organism classify in the following. First is the autotrophs, second is the heterotrophs, and third is the saprotrophs. In forest there are three types of the organism are present: autotrophs, heterotrophs, saprotrophs. First is the autotrophs. These are the organisms which can make their food themselves with the help of the photosynthesis process. For example, plants means they doesn't depend on other organisms for their needs of the food. They fulfill themselves their needs. What is the photosynthesis? It is a process of formation of food by the plants by using of carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chlorophyll is called the photosynthesis. In this diagram we can see plants get light from the sun and carbon dioxide from the atmosphere and water from the soil and perform the process of the photosynthesis which result formation of glucose and oxygen. Glucose used as food and oxygen is released into the atmosphere. This reaction takes place during the process of the photosynthesis. There is 6 molecule of CO2, 6 molecule of H2O and the result formation of glucose and 6 molecule of the O2. Glucose is used as a source of food for the plants as well as the animals. And 6 molecules of oxygen released into the atmosphere. Then second type of animals is the heterotrophs. These are the organism which depend on the autotrophs for their food. Means जो अपना food autotrophs से लेते that is called heterotrophs. For example, animals. We can see like cow, deer, etc. eat grass. That is also comes under the plants, and plants are the autotrophs. These heterotrophs are depend on the autotrophs for their the food. Third is the saprotrophs. These are the organism which obtain their food from the dead organism. That is called the saprotrophs. For example, fungus. Fungus get food from the dead organism. So this is called the saprotrophs. Then types of the animals. First type is the herbivores. These are the animals which can eat only product from the plants. Example, deer, cow. मीन्स जो सिर्फ प्लांट्स के प्रोडक्ट खा सकते हो दैट इज कॉल्ड हर्बीवियस. जो प्योरली वेजिटेरियंस हो, फॉर एग्जांपल काउ, डियर, दे कैन ईट ओनली प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लांट्स. सेकेंड टाइप इज द कार्निवर्स. दिस आर द एनिमल विच कैन ईट ओनली मीट or other animals like lion. Lion can eat only meat or can eat other animals. They never can eat plants product. That is why this is called carnivores. Third is the omnivores. These are the organism which can eat meat as well as the plant product. जो दोनों चीज़ों को खा सकता हो, meat भी as well as the plants product भी. That is called omnivores. For example, human being and the crow. Human being can eat plants product as well as the meat product. That's why this is known as the omnivores. वो vegetarians भी होता है as well as the non vegetarians भी होता है. Then food chains. What is a food chain? A series of organism in which each creature eats the one below it in the series and become a source of food for the organism above it. That is called food chains. क्या होता है जहाँ एक एनिमल जो हायर लेवल पे वो अपने से लोअर लेवल वाले एनिमल्स को खाता होता है, ये फूड चेन्स में होता है. देयर आर लेवल ऑफ द एनिमल्स इन द सीरीज. ए पावरफुल एनिमल ऑक्यूपाई हायर लेवल and the less powerful animals occupy the lower level. For example, lion is more powerful in this diagram. In this diagram, lion is the more powerful and have high level, and deer is the less powerful and have lower level. So, lion can eat this deer. तो इस टाइप से फूड चेन में लेवल होते हैं जो
हमेशा क्या होता है, जो हायर लेवल का ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने से लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म को ईट कर सकता है, उसको खा सकता है। नेक्स्ट फूड चेन हमारी फ्लावर से फ्लाइज, फ्लाइज से फ्रॉग, फ्रॉग से स्नेक, स्नेक से ईगल। तो फ्लावर क्या सबसे कम पावरफुल है, इसलिए फ्लावर्स को जो फ्लाइज वगैरह है वो खा सकती है। उसके बाद फ्लाइज फ्रॉग से कम पावरफुल होते हैं, इसलिए फ्लाइज को फ्रॉग वगैरह खा सकते हैं। फिर फ्रॉग स्नेक से कम पावरफुल होते हैं। इस टाइप से हम देख सकते हैं कि फूड चेन में लेवल होते हैं, जहाँ जो हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने से लो लेवल के ऑर्गेनिज्म को फूड लेते हैं, एज ए फूड वो लेते हैं उन्हें। द नेक्स्ट इज द फूड वेब। व्हाट इज अ फूड वेब? ए सिस्टम ऑफ फूड चेन्स आर रिलेटेड टू एंड depend on each other, means when many food chains are interconnect with each other, that is called food web। जब क्या होता है, बहुत सारी फूड चेन्स इंटरकनेक्ट हो जाती है तो उसको बोलते हैं फूड वेब। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, grass is eaten by the grasshopper is eaten by the owls, that is a one food chain। and another food chain is grass can eaten by rabbit can eaten by the fox। तो क्या ये एक ही प्रोड्यूसर कौन होता है यहाँ पे? सिर्फ ग्रास। लेकिन ग्रास से हमारी बहुत सारी फूड चेन स्टार्ट होती है, तो ये सारी फूड चेन क्या एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। अब ग्रास को ग्रास ऊपर भी खा सकता है, दूसरी तरफ उसको रैबिट भी खा सकता है। देन ग्रेन्स को ये बर्ड्स भी खा सकते हैं, ग्रास ऊपर भी खा सकते हैं, माइस भी खा सकते हैं। तो बहुत सारी फूड चेन्स क्या इंटरकनेक्ट एक दूसरे से, दैट इज कॉल्ड फूड वेब। Next is the component of the food chains. There is three component of the food chain. First is the producers, second is the consumers, and third is the decomposers. What is the producers? इन फूड चेन्स प्लांट्स आर नोन एज द प्रोड्यूसर्स, क्योंकि सबसे पहले क्या करते हैं वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड को प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। सेकंड इज द कंज्यूमर्स, जो प्लांट से अपना फूड को गेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर्स। एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। एंड थर्ड इज द डिकम्पोजर। व्हाट इज डिकम्पोजर? डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? दिस आर द ऑर्गेनिज्म दैट डिकम्पोज डेड एंड द ऑर्गेनिक मटेरियल, जो डेड और ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करके दोबारा से सोइल में मिला देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजर्स। मीन्स प्रोड्यूसर्स खाना बनाते हैं, कंज्यूमर्स उनसे लेते हैं। जो कंज्यूमर्स जब कभी भी उनकी डेथ वगैरह हो जाती है तो डिकम्पोजर क्या करते हैं, उनकी बॉडीज को डिकम्पोज करके दोबारा से सोइल में मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजर्स। तो फूड चेन्स के देयर आर थ्री कंपोनेंट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड द डिकम्पोजर्स। वट हैपन इफ एनी कंपोनेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम ए फूड चेन्स? क्या होता है अगर हम किसी एक कंपोनेंट को फूड चेन्स में से रिमूव कर देते हैं? फॉर एग्जाम्पल अब ये वाली फूड चेन ले लेते हैं, ट्रीज, डियर्स, लोइन। अगर इस वजह से हम डियर्स को रिमूव कर दे तो क्या होगा? इफ वी रिमूव एनी कंपोनेंट इन ए फूड चेन्स देन होल फूड चेन बिकम्स डिस्टर्ब। क्या डिस्टर्ब हो जाती है पूरी की पूरी फूड चेन थी। तो अगर हम इसमें से हिरन डियर को क्या कर दे, रिमूव कर दे, तो ट्रीज को खाने वाला कोई नहीं रहेगा, जिससे द नंबर्स ऑफ द ट्रीज इंक्रीजेस। जबकि दूसरी तरफ लोइन क्या होगा, लोइन का कोई शिकार नहीं होगा, उसका खाना नहीं बचेगा, तो वो भूख के कारण मर जाएगा, जिससे पूरी की पूरी फूड चेन ही डिसबैलेंस हो जाती है। तो हम फूड चेन्स में से किसी भी कंपोनेंट को रिमूव नहीं कर सकते। देन आता है फॉरेस्ट इज एबल टू फंक्शन एज एन independent unit because there is no addition of shade and fertilizer or food and water for animal। ये कहता है कि जो फॉरेस्ट होता है वो एज ए इंडिपेंडेंट यूनिट के फॉर्म में काम करता है, क्योंकि वहाँ ना तो कोई सीड डालने जाता है, ना कोई फर्टिलाइजर डालने जाता है, ना उन प्लांट्स को फूड देता है, ना ही वाटर देता। वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स अपने आप को खुद एडजस्ट करते हैं, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वो खुद ग्रो करते हैं। तो इस फॉर्म में कह सकते हैं फॉरेस्ट इज एन एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट, क्योंकि वहाँ प्लांट्स को ना किसी सीड की जरूरत होती है, ना फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, ना फूड की, ना वाटर्स फॉर एनिमल्स की जरूरत होती है। वो नेचर के साथ खुद पे खुद एडजस्टमेंट करते हैं। देयर इज न्यूट्रिएंट साइकिल टेक प्लेस इन द फॉरेस्ट। ऐसा क्यों? तो वो कैसे इंडिपेंडेंट यूनिट के फॉर्म में काम कर सकता है, क्योंकि वहाँ जो न्यूट्रिएंट साइकिल है उसका साइकिल चलता रहता है, न्यूट्रिएंट्स का साइकिल चलता रहता है। व्हाट इज न्यूट्रिएंट साइकिल? इट इज अ रिपीटेड पाथवे of a particular nutrient from one environment through one or more organism and back to the environment। मीन्स किसी एक या एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के द्वारा एनवायरनमेंट से ही वो किसी न्यूट्रिएंट्स को लेता है और फिर वापस वो यूज वगैरह करके दोबारा से एनवायरनमेंट में ही छोड़ देता है, दैट इज न्यूट्रिएंट साइकिल। फॉर एग्जाम्पल इन दिस डायग्राम वी कैन से जो सोइल
प्लांट्स की रूट्स होती है वो सोइल से क्या लेते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स लेती है। उसके बाद ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ चले जाते हैं, प्लांट्स के पास, प्लांट्स की लीव्स के पास। उसके बाद ये प्लांट्स की जो लीव्स होती है वे डियर खा लेती है, तो वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ आ गया, अब इस डियर के पास आ जाते हैं। और दूसरी तरफ कई बार क्या होता है, इस प्लांट्स की जो लीफ है वो नीचे गिर जाती है, तो वो क्या हो गया, अब डेड। डेड होने के बाद वो भी सोइल पे होगी। थोड़े दिनों के बाद इस जो ये डियर है इसकी भी डेथ हो जाती है, तो ये भी डेड। अब जो ये डेड लीव्स और डेड डियर्स है, इन पे डिकम्पोजर काम करते हैं, उनकी बॉडीज को डिकम्पोज कर देते हैं, और डिकम्पोज करने के बाद वो सोइल में मिक्स कर देते हैं। तो आफ्टर द डिकम्पोजिशन द न्यूट्रिएंट्स इज अगेन रिलीज्ड इनटू द सोइल, वो दोबारा से सोइल में चले जाते हैं। तो इससे क्या, इस न्यूट्रिएंट्स का, दिस इज अ साइकिल ऑफ द न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स एक साइकिल में चल रहे हैं, पहले वो सोइल से प्लांट्स के पास गए, प्लांट से फिर लीव्स के पास, लीव से दोबारा वो सोइल में आ जाते हैं। तो एक साइकिल की फॉर्म में वो काम करता है। दूसरी तरफ ऐसे ही वाटर भी वो क्या करता है, अपनी रूट्स के थ्रू प्लांट्स वाटर लेता है, उसके बाद वो लीव्स में जाता है, देन ट्रांसपिरेशन के थ्रू एनवायरनमेंट में चला जाता है। एनवायरनमेंट में जाने के बाद वो वेपर फेज में आ जाता है, वेपर फेज से दोबारा से रेन्स की फॉर्म में वो दोबारा से सोइल में आ जाता है। देयर इज ऑल्सो साइकिल टेक प्लेस ऑफ द वाटर। ये तो ये पानी का जो और दूसरे न्यूट्रिएंट्स का कुछ साइकिल होता है, इसी को बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल, जो कि फॉरेस्ट में चलते रहते हैं। इसी न्यूट्रिएंट साइकिल की वजह से जो फॉरेस्ट इज अ एक्ट एज ए फंक्शन, एक्ट एज ए इंडिपेंडेंट यूनिट, वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट की फॉर्म में काम करता है। दिस इज योर होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिफाइन द टर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस टर्म क्या होते हैं उसको डिफाइन करो। देन सेकंड इज द व्हाट आर द ऑटोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं। देन थर्ड इज द व्हाट आर द हेटरोट्रोप्स, हेटरोट्रोप्स क्या होते हैं। डिफाइन द टर्म हार्बीवर्स, एक्सप्लेन अबाउट फूड चेन्स, एक्सप्लेन अबाउट फूड बैग, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी कल के लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।